Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in today's class, we will be going to discuss the prelims point of view topic, that is ocean temperature. So आपको पता है सबको ocean temperature क्या होता है? The temperature at the upper part of the ocean, ठीक है? But we will be going to see the trends in the ocean temperature. It means the vertical distribution as well as the horizontal distribution. The mean temperature of ocean is 25 degrees Celsius. If we are comparing northern and southern hemisphere, so किसका temperature ज़्यादा होना चाहिए? Yes, northern hemisphere has recorded a higher temperature than the southern hemisphere. The reason behind this is the presence of abundant amount of land. So the land is heated faster and the excess amount of heat that has been withholding by the land is transferred to the water or ocean body. So that's why northern hemisphere records higher temperature than southern hemisphere. Now let's quickly refer to the factors that influences the ocean temperature. So these factors are so starting from insolation and latitudes. If we are recalling the temperature distribution or the insolation distribution on the earth, हमने क्या पढ़ा था? That insolation will be highest at the insolation will be highest at tropical, subtropical, high pressure belt. Why not equator? Because equator has first the cloud cover and the second is the daily rainfall. So that's why the temperature of the equator dips down. So अगर हम उसको इससे कंपेयर करें तो उसमें भी था, इफ़ वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल द इंसोलेशन लेवल डिक्रीजेस. द सेम विल बी अप्लाइड हेयर. इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर एंड गोइंग टुवर्ड्स पोल, द ओशन टेम्परेचर विल जनरली डिक्रीज. बट हाइएस्ट का मिलेगा? यस, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अगेन. वाई? बिकॉज इंसोलेशन इज ग्रेटेस्ट एट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. So this was the first factor. The second factor is the enclosed sea. Now there are two subcategories of this factor. The first is at lower latitudes and the high latitudes. So it is generally observed that at lower latitudes the enclosed sea will record a higher temperature than an open sea. तो यहाँ हमारे पास एनक्लोज्ड सी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है. अगर हम एग्जांपल लें तो रेड सी रिकॉर्ड्स ग्रेटर टेम्परेचर देन मेडिटेरेनियन सी. इन हाई लैटिट्यूड्स द open sea or the enclosed sea will record lower temperature than the open sea. So the complete opposite of this will happen at high latitudes. If I give you the example, it is, मान लीजिए Baltic Sea. So in high latitudes, enclosed sea will record higher temperatures. Enclosed sea will have, yes, सही तो है. मैंने क्या बोला? In lower latitudes, enclosed sea पूरा चारों तरफ से कवर्ड है ग्राउंड से. एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट ग्राउंड की कहाँ जाएगी? सी के पास. सो एनक्लोज्ड सी विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन ओपन सी. कमिंग टू द हाई लैटिट्यूड्स, जल्दी से हीट कौन छोड़ देता है? लैंड जल्दी हीट छोड़ देता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और यही ठंडा हक
वो सी को भी देगा। सो एनक्लोज सी विल रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर देन ओपन सी। तो इसकी हमने क्या बात की, बाल्टिक सी का टेम्परेचर कम है नॉर्थ सी से। अंडरस्टूड। The next one is the currents, the warm current as well as the cold current. So we all know warm current will increase the temperature and vice versa. Winds, देखिए ऑनशोर विंड्स हो सकती हैं, ऑफशोर विंड्स हो सकती है। जो लैंड पे विंड्स आ रही हैं डेट आर ऑनशोर विंड्स, जो लैंड से पानी में जा रही है डेट आर ऑफशोर विंड्स। नाउ इन द लोअर लैटिट्यूड्स, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे सिग्निफिकेंस पे। अगर विंड ऑनशोर है तो इसका मतलब लैंड अगर हीटेड है पहले से और वाटर भी ऑनशोर आ रहा है, क्योंकि विंड ऑनशोर है, इसका मतलब वाटर विल गेट हीटेड। वाई? बिकॉज द एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम लैंड टू वाटर। तो मैंने क्या बोला, इफ द प्रिवेलिंग विंड्स आर ऑनशोर विंड्स, सो वाटर विल कम ऑनशोर। इट मीन्स द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट that has been preserved by the land will be transferred to water and thereby increasing the temperature of water. So this is the first thing. The second is if the prevailing winds are offshore winds, it means land से wind जा रही है पानी की तरफ, so it will take water with him. तो क्या होगा, जितना भी कोस्ट के पास वाटर जमा है वो पीछे हटता चला जाएगा। इसका मतलब जो भी टच है लैंड और वाटर का, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो और कम हो गया। क्यों? बिकॉज द वाटर हैज़ बिन रिसीडेड फ्रॉम द कोस्ट लाइन। इसका मतलब द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस केस, दिस इन पर्टिकुलर केस दैट इज़ नॉट हैपनिंग हेयर। सो इसका मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वाटर। जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा पीछे चले जाएगा वाटर और ठंडा हो जाएगा, वी एक्सपीरियंस क्या था, अप वेलिंग। सो ये था कंसेप्ट। अब समझते हैं विंड्स के कंसेप्ट में जनरली में। मुझे बताइए, ये है लोअर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड में प्रिवेलिंग विंड्स कौन सी होती है? यस, द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मतलब ईस्टर्लीज, यहाँ से यहाँ जा रही है। सो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट द विंड्स आर ऑनशोर विंड्स। इसका मतलब यहाँ पानी ज़्यादा आएगा, जमा हो जाएगा ज़्यादा, और जैसे ही यहाँ ज़्यादा पानी जमा हुआ द एक्सेसिव अमाउंट हीट विल गेट ट्रांसफर्ड। इट मीन्स ये हो जाएगा हॉट वाटर, देयर बाई इंक्रीजिंग द ओशन टेम्परेचर। द सेकेंड थिंग इज यहाँ तो ऑनशोर थी विंड्स, द ट्रेड विंड्स आर ऑनशोर हेयर बट दे आर ऑफशोर ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो क्या होगा, यहाँ से पानी, the amount of water get decreased as well as we will experience the upwelling. Understood? So this was the case of lower latitudes. lower latitudes की अगर बात करेंगे हम तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? यस, द गल्फ ऑफ मैक्सिको एज वेल एज द कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो किसमें ओशन टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए? गल्फ ऑफ मैक्सिको इज एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज एट वेस्टर्न कोस्ट। तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए? यस, गल्फ ऑफ मैक्सिको का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से। अंडरस्टूड? द सेकेंड केस इज ऑफ डेट हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड्स में विच इज़ द प्रिवेलिंग विंड? वेस्टर्लीज। अगर वेस्टर्लीज है तो ऐसे जा रही हैं, अगर ऐसे जा रही हैं तो यहाँ ज़्यादा पानी जमा है, यहाँ कम पानी जमा है, यहाँ की थोड़ी सी वार्म हो जाएगी। अब मुझे बताइए क्या होना चाहिए एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आप लीजिए लेब्राडोर सी का एंड नॉर्थ सी का। लेब्राडोर सी इज एट द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कनाडा, और जो भी हमारे पास
दूसरी सी है नॉर्थ सी, दैट इज एट द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द यूरोप। ठीक है, तो उसमें आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा गर्म होगा कौन सा ठंडा होगा। वेस्टर्लीज बह रही हैं, हम कनाडा से बात कर रहे हैं। सो ऑफ शोर कहाँ है? यस, लेब्राडोर सी पे ऑफ शोर है, इसका मतलब वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। वेस्टर्लीज ऑन शोर कहाँ है? यस, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की तरफ वो ऑन शोर है, इनका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब नॉर्थ सी का टेम्परेचर ज़्यादा है। सो दिस इज द स्टेटमेंट्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड यू in the prelims exam. So these are the number of factors that are influencing the ocean temperature. Now we will see the distribution. So there are two distribution. The one distribution that I have told you is the horizontal distribution. कैसा है horizontal distribution? As we go up in the latitudes, we will see a decrease in ocean temperature, but the maximum amount of ocean temperature that we can record is at the subtropical high pressure belt. Now we will see the vertical distribution. आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा? 24 डिग्री से स्टार्ट होएगा, एकदम से a sudden and abrupt change in the temperature will be experienced by us, then it will remain constant. This sudden or abrupt change in the ocean temperature is known as, क्या था ये? आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन ही था शायद से। देख लेना एक बार, सॉरी थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन नहीं, यस थर्मोक्लाइन। Thermocline, this line is known as thermocline, sudden or abrupt change in the ocean temperature. ट्रॉपिक्स पे है तो 24 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, अगर पोल से होता तो कहाँ से स्टार्ट होता? यस, यहाँ से स्टार्ट होता और फिर यहाँ आता है। तो आप देख रहे हैं जब पोल से स्टार्ट हो रहा है फिर भी हमारे पास नीचे सेम लाइन मिल रही है हमें। What represents this 200 meter line? Yes, that is the photic zone up to which the sunlight can penetrate deep into the water. This is the cold layer. Up to this is the warm layer. So this is the temperature, ocean temperature distribution, vertical ocean temperature distribution. So ये हमारे पास ओशन टेम्परेचर का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। Now we will see the salinity part. So सबसे ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट कौन सा पाया जाता है? यस, NaCl। इसके बाद Mg के पाए जाते हैं, दो सॉल्ट्स, और इसके बाद हमारे पास होता है कैल्शियम। बट एज यू नो, और ये होता क्या है, सैलिनिटी होती क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर। सो दिस इज द सैलिनिटी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर को कंपेयर करें तो सैलिनिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? यस, सदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वाई? बिकॉज द वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी इज द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर।
तो फ्रेश वाटर इसका मतलब स्ट्रीम्स पोलर कैप से जो आ रही हैं वो कहाँ से आती हैं, सारी नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में तो वी डोंट हैव एनफ लैंड, बट इन द नदर्न हेमिस्फीयर वी हैव अबंडेंस ऑफ लैंड एज वेल एज अबंडेंस ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स। तो सारी आके मिलती हैं हमारे जो ऊपर वाले ओशंस हैं उनमें ज़्यादा। सो दैट्स वाई सदर्न हेमिस्फीयर सैलिनिटी इज मोर देन द नदर्न हेमिस्फीयर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन द ओशन that makes the ocean namkeen is the NaCl. But the water, the fresh water that will be coming and influxing in the oceans, northern oceans, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? Yes, there is a dissolvement of calcium, but oceans में NaCl है, तो ये कैसे हो गया? Yes, the organisms that are living under the ocean, they are utilizing this calcium. Why? To form exoskeletons, to form or prepare their food. Example, corals. So that's why the amount of calcium will be lowered down in the ocean and automatically NaCl will increase. Understood? So that's why the presence of NaCl. Now we will jump to the factors. बिफोर वी जम्प टू फैक्टर्स, कुछ चीज़ें अपना एटलस खोल लीजिए और देखिए। प्लीज़ गो टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में आपको दिख रहा होगा चिल्का लेक। चिल्का लेक कौन सी रिवर पे है, वहीं टिक मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ ऑफ चिल्का लेक एक आर से रिवर बह रही होगी, ऋषिकुल्या, उसको देख लीजिए। फोकस ऑन द नलबाना एज वेल एज मंगल जोड़ी बर्ड सेंचुरी, तो ये देख लीजिए। दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उड़ीसा में। द फर्स्ट वन इज़ गहीरमठ एंड द सेकंड वन इज़ सिम्प्लीपाल टाइगर रिजर्व, तो ये भी देख लीजिए। नाउ कम टू द मैप ऑफ रशिया। रशिया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इन सब का रीजन देखिए। यहाँ आपको दिखेगा ब्लैक सी में द 4 मेन रिवर्स ऑफ यूरोप आर infusing their water, that is Don, Dnieper, Dniester and Danube। तो ये जो 4 रिवर्स हैं ये कहाँ आती हैं? ब्लैक सी में। और मैंने क्या बोला, जैसे ही ब्लैक सी में रिवर्स इनफ्लो होती हैं तो वहाँ का सैलिनिटी कम हो जाएगा। ठीक है। कैस्पियन सी देखिए, कैस्पियन सी में एक प्रोमिनेंट रिवर आ रही है, डेट इज़ वोल्गा आ रही है। सो इतनी सारी जब रिवर कैस्पियन सी एंड दिस ब्लैक सी में गिर रही हैं, तो अगर इफ़ यू कंपेयर द टेम्परेचर, नॉट द टेम्परेचर, द सैलिनिटी ऑफ मेडिटेरेनियन सी ऑन वन साइड एंड ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी ऑन अदर साइड, तो सैलिनिटी किस में ज़्यादा देखने को मिलेगी? यस, द मेडिटेरेनियन सी। तो ये एक एक्सेप्शन है, मेडिटेरेनियन सी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है इफ़ यू कंपेयर इट टू ब्लैक एंड कैस्पियन सी। फैक्टर्स हम देख रहे थे, फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। देखिए मैंने बताया था कि ट्रॉपिक्स में और इक्वेटोरियल रीजन में क्लाउड कवर एंड डेली रेनफॉल होता है, तो वहाँ थोड़ी सैलिनिटी हमारे पास कम हो जाएगी। जहाँ भी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ क्या होगा? सैलिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर थे। एक और फैक्टर है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, तो वही वो इवेपोरेशन में आ जाएगा, कोई अलग पॉइंट तो है नहीं है। क्यों? अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब इंसोलेशन आ रही है, तो मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स हो रहा है तो इवेपोरेशन का दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि वहाँ से रिवर फ्लो होंगी और रिवर फ्लो आके ओशन में मिल जाएगी, मतलब रिड्यूसिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशन। और दूसरा पार्ट क्या है इवेपोरेशन का? अगर ओशन वाटर में ही ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्ट कंटेंट उसमें बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो रहा है तो सॉल्ट कंटेंट खुद ही बढ़ रहा है। सो दीज आर द 2 प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन।
एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सैलिनिटी का, और ये पूरा प्रीलिम ओरिएंटेड टॉपिक है। तो सैलिनिटी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैलिनिटी डिक्रीजेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन इंडियन ओशियन। अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, फिर यहाँ से कौन सा आ जाएगा, पर्शियन गल्फ, इधर है गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ है रेड सी। सो दिस इज द सैलिनिटी। सो देयर इज अ क्लॉकवाइज डिक्रीज इन सैलिनिटी और एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज इन सैलिनिटी। तो आप कोई भी इसमें से नाप सकते हैं। अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, एंड दिस इज रेड सी। अब इसका कुछ मेन एप्लीकेशंस भी आप देख लीजिए। इफ़ वी आर कंपेयरिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, तो किसकी ज़्यादा होगी? यस, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, देख लेना। मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी, कैस्पियन सी का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है। मेडिटेरेनियन सी की ज़्यादा होगी, दिस इज एक्सेप्शन। मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक सी एज वेल एज द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में कौन सी रिवर ड्रेन हो रही है? वोल्गा। ब्लैक सी में कौन सी हो रही है? 4 हो रही है, डॉन, नाइपर, नाइस्टर, डानुबे, सारी डी से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। एंड हाइएस्ट सैलिनिटी हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन एटलांटिक ओशियन। अंडरस्टूड? सो आज की क्लास में हमारे पास इतना ही है। एवरेज सैलिनिटी हमारे ओशंस की है 35 पीपीटी करके कुछ बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे पीपीएम करके, और ऐसे डिनोट करते हैं परसेंटेज का साइन पर 2। सो दिस इज द साइन। आप देख लेना, ओनली प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था ये टॉपिक। एक बार सिग्निफिकेंस भी देख लीजिए सैलिनिटी की जब पढ़ ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। सो होप आपने सारा चीज़ें पढ़ ली होगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।